everyone. Welcome back to another episode of Recoding Myself Stories of Growth and Inspiration with CA Chandni Pennai. Today I have a very special guest, Ankit Nair. Ankit is Executive Director of BNI Jodhpur and North Rajasthan and also a dynamic entrepreneur, community builder and marketing consultant. He introduced BNI Jodhpur chapter in 2021 and within a short period of time, he is an executive director. But there is so much more to Ankit's journey. He is also a professional cycling rider and a healer, a strength which was discovered back 15 years back. On the top of that, Ankit has faced significant challenges, having been a chronic epileptic patient and it was also more than 25 years since childhood. Despite of these challenges, he has transformed his life to impactful public speaker. Why don't we dive into his journey and learn how he transformed his weakness into strength? Let's get started. Thank you so much for coming to my show. Recoding Myself welcomes you. Thank you for having me. Thank you, Chandni. It is a pleasure of coming all the way to Bikaner and being a part of your podcast. Looking forward to have a great podcast with you. Yeah, definitely. We are also going to learn so many things from you. So let's get started. Sure, why not? I have heard you are building so many communities and that even business connections and so much more you are doing in your field. I would like to know what are they and how they operate. How do you operate all those things? Sure. So Chandni, one of the most important thing is that community building, which is one of my purpose of life, or you can say which is one of the things, also one of my passion. Mm-hmm. So while you are into the people's organization, the most important thing while you operate with them, which is one of the toughest job in the world of managing the people, agree. and that is again over that we have business owners all around us. Yeah. So the only thing what I always take care, first thing is I don't want to take control over them. I just want that I have to take control over myself because I cannot change them, but I can change myself. Okay. So that is the first go to market strategy what I personally believe, and what we are into. So I am a community builder. I am an entrepreneur. I am in terms of I am a marketing consultant as well as I am a psychic reader. So what all things we do under the community building? I am the executive director for a business community which is called as BNI. Okay. We are running in Jodhpur as well as Bikaner as well as Ganganagar. Okay. So across this belt we have more than 350 plus members, and from like various industries, and it's been almost 3 years, and our members have crossed a business of more than 475 crores in just last 36 months. Oh, that sounds incredible. Yeah, and in fact, I have been fortunate to actually connect with all these dynamic entrepreneurs because all these people are those who have actually given me a lot of insights about various industries, as well as I have been able to you can say experiment on myself after connecting with them. Secondly, in terms of marketing consulting, what I do is my major forte is the positioning of the product while you are doing any kind of marketing of your service industry, or else you are into a product industry. So the positioning is one of those important areas where I specialize at, and I have been consulting a lot of companies for that. And psychic reading is again you can say one of my purpose of life, to which I am here to help This the sounds entrepreneurs. very interesting. Yeah. Please definitely say me something about me. If you can say like. So definitely we'll have a one-to-one session post this podcast, so because there are lot of personal content which might be come up. Yeah, that should be off the camera. So आपका जर्नी जो है बचपन से थोड़ा सा मुझे वो भी जानना है क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग है. So इसमें क्या हुआ कि जब से since my childhood I would say I was a chronic epileptic patient and I was used to also stammer. Okay. मैं बचपन से बहुत ज़्यादा हकलाता था, जिसकी वजह से I used to get bullied in my classrooms. अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहे आप हकलाते थे. I think this is a transformation what I have experienced over here in BNI.
Okay. बिकॉज जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि बीएनआई इज वन सच प्लेस वेयर यू कैन कनेक्ट विद योरसेल्फ. Right. So, since my childhood, I was like almost for 25 years, I have been a chronic epileptic patient. I had severe attacks while I was sitting in my classrooms, while I was at some event, while I was like throughout up till initial 25 years. And I have seen a lot of things which have been killing my self-love. जो मेरा सेल्फ लव था वो कहीं डेवलप ही नहीं हो पाता था. इनफैक्ट रेसिटेशंस के अंदर जब मैं स्टैमर करता था तो मैं कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाता था. सो इफ आई थिंक दिस इज माय फियर, इसके पीछे क्या है? सक्सेस. अलग दुनिया है. सक्सेस है, I can say. राइट? हाँ. तो अगर ये फियर है और ये सक्सेस है, सो व्हाट आई डू ऑलवेज, आई जस्ट फ्लिप इट एंड आई लुक एट सक्सेस. आई डोंट लुक एट फियर. So I have to change the perspective. Only then things will change for me, and that is what has been happening with me. So जैसे ही मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, I immediately convert it into success, and I look it as an event. So my excitement levels are absolutely different. Okay. तो आपको वो एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, जनरली सबको होती है. तो So- हाउ टू ओवरकम दोस एंजाइटीज? उसका एक ही लाइन है, हाँ. उसका एक ही सोल्यूशन है. एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने बोली है, हैप्पीनेस इज योर चॉइस. करेक्ट. सो अगर आप कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो उतने ही कम आपके इमोशंस हर्ट होंगे. ये ड्यूरिंग द जर्नी मैं सीख रही हूँ. राइट. सो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करनी नहीं चाहिए, पहली चीज़ तो. करेक्ट. और आपको कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को, एक्सेप्ट योर फैमिली, बट किसी को इतनी राइट मत दीजिए कि कोई आपको आकर के अगर कुछ भी बोल दे और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग कि येस आई एम दिस पर्सन. राइट. So you cannot give this kind of a power to any of the Tom, Dick and Harry. So this is where you have to realize that you are content within. Plus, आपकी happiness आपके हाथ में है. It's why It's you your are. choice. Yes. So you should not pass it on to others. Right. That is one of the most important thing. And if anyone is coming across to you, it is मैं एक बहुत simple theory बताता हूँ आपको. So we all are humans. Right. So इस पूरे सृष्टि पर तीन तरह के लिविंग बीइंग्स हैं. वन इज ह्यूमंस, अदर इज एनिमल्स, एंड द थर्ड्स आर प्लांट्स. सो भगवान ने जब सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो अपन ह्यूमंस पैदा हो गए. हाँ. सो वी आर बीइंग गिफ्टेड, राइट? व्हेन यू योरसेल्फ इज अ गिफ्ट, तो यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपको हर चीज जो आ रही है वो गिफ्ट ही है आप तक. 100%. I can connect with you totally. आप बोल रहे हो 25 साल से आपको प्रॉब्लम थी, तो आप ऐसा क्या किए कि उसको and you came to public speaking, like an impactful public So, speaker. दो चीजें मेरे साथ बड़ी मतलब कॉमन जहाँ है. आप हकला रहे हो, जहाँ आप स्टैमर कर रहे हो, जहाँ आपको लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, एंड वो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो आई फील कि रहा ही होगा. तो उसमें हाउ यू डिड द जर्नी, हाउ वाज दैट जर्नी एक्चुअली? सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको मैं. Up till I would say 2017, I was experiencing stammering. I was experiencing earlier तो मुझको पहले तो मतलब महीने में 2-3 अटैक्स आते थे. Oh God. But 2017 तक I was like एक या दो अटैक साल के. But 2017 में जब मैंने BNI ज्वाइन किया, I'm not marketing BNI over here, but I'm just telling you, जब मैं BNI में आया as a member, so मैंने हमेशा अपने आप को एक ही क्वेश्चन करता था. मैं आज भी मैं सुबह उठता हूँ तो अपने आप को एक ही क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज नेक्स्ट. Okay. तो जब मैं उस रूम में आया एज अ मेंबर, तो मैंने सबसे पहले देखा, और मेरा उस दिन इंडक्शन था, चैप्टर में मेरा इंडक्शन हुआ था. Okay. तो मैंने देखा वो सामने जो लीडरशिप टेबल है वहाँ पर कैसे जा सकते, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी ओवर देयर. और वो चैप्टर लॉन्च हुआ था लास्ट वीक, एक वीक पहले ही लॉन्च हुआ था. तो मैंने बोला मेरे को तो वहाँ आना है, और मैं जानता था कि मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आएगी जिसको मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ. आई एम गोइंग टू स्टैमर, एंड वहाँ पर भी हमारे को 30 सेकंड में प्रेजेंटेशन देने होते हैं. एंड इट ऑलमोस्ट यूज्ड टू टुक मी 2 minutes to 3 minutes to actually recite my 30 seconds. But I thought नहीं यार, मैं तो वहाँ आना है एक बार. करना है एक बार. I am not manifesting this into a negative way, but हुआ क्या कि महीने भर बाद जो VP था उसका एक्सीडेंट हो गया, and he was bedridden for 3 months. और मैं मेंबरशिप कमेटी के पार्ट था, तो मुझे इमीडिएटली एलिवेट कर दिया VP के लिए. वो अपॉर्चुनिटी तो आई. वो अपॉर्चुनिटी आई. अब जब मैं वहाँ आया और मेरे सामने स्क्रिप्ट थी,
तो इट वाज लाइक अरे ये मैंने सोच तो लिया बट अब ये स्क्रिप्ट को रीड करना है. फर्स्ट मीटिंग थी उसमें तो स्क्रिप्ट में मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स करे बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने उसको इम्प्रूव किया, धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तो सारी चीज़ें चलती गई होती गई. अब इस पूरी जर्नी के अंदर भी मैंने एक टाइम देखा था जब व्हेन आई वाज अ मेंबर. सो देयर आर ऑलवेज फ्यू सेट ऑफ पीपल. जो एक रूल है कि आउट ऑफ 100 पीपल 33 people will love you for what you do. 33 people are the people who don't care what you do. Okay. And 33% of the people are who don't even bother what you guys are doing. Correct. तो मेरे को उस पूरी जर्नी के अंदर एक एग्जाम्पल याद आता है. एक बहुत अच्छी एक कहानी है. तो एक बार मेंढकों की रेस हो रही थी. तो मेंढक की रेस हो रही थी और ये था कि कौन सा मेंढक पहाड़ को जल्दी जल्दी चढ़ेगा. ठीक है. तो एक मेंढक था जो भागते भागते और पहाड़ को चढ़ता गया. अच्छा. और पीछे से लोग उसको कर्ज कर रहे थे, अरे पागल है, वहाँ कहाँ चढ़ रहा है, कुछ होना नहीं है, एंड हाउ यू गोइंग टू अचीव इट, तेरे से होगा नहीं, ये नहीं होगा. बट somehow वो मेंढक वहाँ पहुँच गया और उसने पहाड़ को चढ़ लिया. शायद वो सुन नहीं पा रहा. तो बाद में जब पता पड़ा कि वो मेंढक बहरा था. हाँ, एग्जैक्टली तभी. पर हुआ क्या, ये तो आपने सुना कि मेंढक बहरा था, ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया. बट मेंढक सोच क्या रहा था जो था मेरा, कि ये सब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं ऊपर पे पहुंचने के लिए कि तू उसको कर सकता है. सो एग्जैक्टली यही चीज मैं करता था. आई यूज्ड टू नेवर इवन थिंक कि कौन मेरे को क्या चीज बोल रहा है या कोई मेरे लिए मजाक बना रहा है. सेल्फ एप्रिसिएशन, you should be focused and you should first. क्या होता है, मैं अपने मेरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई हैव डन, मैं आज आपके साथ बैठा हूँ या मैं कोई भी चीज़ होती है मेरी लाइफ में, मैं उसको विजुलाइज करके पहले ग्रैटिट्यूड दिखाता हूँ. ओके. सो उससे क्या होता है, व्हेन यू डू सच थिंग्स, चीज़ें आपके लिए आपके तरीके से आती हैं. आपने जैसे अपनी स्टोरी बताई स्टैमरिंग एंड ऑल, आई वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, जो मुझे पता ही नहीं था मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है. आई वाज अ हार्ड वर्कर. मैं काफ़ी मतलब कभी मैं फेल नहीं हुई अपार्ट फ्रॉम सीए, ऑल्दो सीए बन गई हूँ मैं. अपार्ट फ्रॉम सीए उसमें मुझे लगता है सभी फेल होते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील. इट्स नॉट अ फेल. एक ना, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, अभी एक रिसेंट एक एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने इंस्टाग्राम पे. तो उसमें एक जना आया और उसने कोई तो डॉक्यूमेंट था, उसमें अपना ऑफिस में अपना नेम लिखा. तो उसके उसका जो कलीग था उसने बोला कि तू इतना लो क्यों हो रहा है, कि वो जो अंदर बॉस बैठे हैं वो सीए हैं, तो उन्होंने बोला है कि भाई ऐसे ऐसे करो, और मेरे को डाटा, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गए और मैं फोर्थ अटेम्प्ट में बना सीए. तो उसने क्या करा, उसने पेन लिया, उसके नाम के आगे सीए लिखा और बोला अब सीए फलाना फलाना नाम, क्यों दुनिया को नहीं पता है कि तूने 4 अटेम्प्ट में क्लियर किया, तूने 10 अटेम्प्ट में क्लियर किया. सो जो आपकी डेजिग्नेशन है उसकी प्राइड ही अलग है. हाँ. लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, एक और चीज इससे रियलाइज हुई, majority of people who actually fail, they are stuck in the process. कि मैंने ये, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, तुमको क्या पता मैं क्या स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, या फिर मेरे को वहाँ तक करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा. People are stuck in the process. People should look at the result. रिजल्ट कितना हैपनिंग होगा, वो जब रिजल्ट के ऊपर फोकस होगा तो जर्नी अपना इजी हो जाएगी. एवरी जर्नी में भी इवन ग्रेटिट्यूड स्टाइल किया. चलो आज मेरे लिए आज ये भी ग्रेटिट्यूड है, आप आए हो मेरे शो में. फीलिंग इज म्यूचुअल. तो वही ना, जब डिसलेक्सिया था मुझे पता भी नहीं था मुझे डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है. मैं पढ़ती थी और करती थी, फेल नहीं होती थी, मतलब एवरेज मार्क्स आ जाते थे, बट जितना करती थी वो रिजल्ट नहीं मिल पाता था मेरे को. तब धीरे धीरे ये समझ में आया कि कुछ तो है जहाँ मैं पढ़ने लिखने में थोड़ी सी स्लो हूँ कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट. अब ये फियर तो है मेरे, तो मैं क्या करती थी, अवॉइड करती थी चीज़ों को, अवॉइड करती थी. छोड़ो ना, क्यों तो पब्लिक स्पीकिंग करना है, क्यों तो फेस करना है, ना तो कोई मुझे जज करेगा, ना तो मैं फेल होंगी काइंड ऑफ पर्सन. टुडे यू आर कंडक्टिंग पॉडकास्ट. आई डोंट नो हाउ. बट हाँ, आपने जो वो बोला ना, ये फ्लिप करना है, आई एम ऑन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट. तो वो फ्लिप करने से अच्छा लग रहा है. कमियाँ हर में होती है. आई फेल्ट कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सब में कमी होती है, एक्सेप्ट दैट कि हाँ मेरे में ये कमी है और अपने इस प्रोसेस को कैसे बेटर कर सकते हैं.
तो आई एम ऑन दैट जर्नी। ये वाली बातें तो हो गई, आप ये बताइए अब बिजनेस एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट ऑल्सो, तो मार्केटिंग ऐसे क्या मिस्टेक्स जनरली अ Entrepreneurs कर पर्सन, रहे हैं। हाँ एंटरप्रेन्योर आर डूइंग, आप उनको क्या टिप देना चाहोगे? सो क्या होता है कि सपोज मुझे ये प्रोडक्ट है और मुझको उसको मार्केट में करना है, पोजीशन सेल करना है, तो इस प्रोडक्ट को सेल करने से पहले प्रॉब्लम क्या हो रही है, दो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लोग बाग इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, सेटअप्स लगा देते हैं, प्रोडक्शन कर देते हैं, मगर वो मार्केट आइडेंटिफाई नहीं करते। होता Okay. क्या है कि आपने एक्स मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, उस एक्स मार्केट की डिमांड ही ये नहीं है और उसमें आप ये वाला प्रोडक्ट लेके आ रहे हो एट अ चीपर कॉस्ट, सेइंग दैट कि मैं लेके आऊँगा एंड आई विल एक्सपेरिमेंट, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर इज वेरी हाई। आप जो प्रोडक्शन लेके आए हो, प्रोडक्शन प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग लेबर है, टाइम, एनर्जी, कैपिटल सब लग रहा है, एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट जो एक ग्राहक आता है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर इज सो हाई, जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट है उसके पीछे, lot of capital is involved. So first and important thing is that people should identify what market they are entering in. Okay. उस मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए there is a simple process. So अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हो या फिर आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, आपको सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको मार्केट आइडेंटिफाई करना है तो पहले तो मार्केट रिसर्च करो, क्या आपका प्रोडक्ट है और क्या प्रोडक्ट आप ये सर्विस मार्केट में लेके जा रहे हो, और क्या वो मार्केट में जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है डेफिनेटली। सपोज आज मैंने ये कप मैन्युफैक्चर किया और ये कप लेके जा रहा हूँ मैं मार्केट के अंदर, और इसको पीते वक्त मेरी चाय गिर रही है बार बार, तो इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर माई कस्टमर, दैट इज व्हाई दिस विल बी आउटडेटेड और दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इनटू द मार्केट। ओके। या अगर ये कप बहुत अच्छा है बट इट इज वेरी हैवी, वेरी बल्की, तो ये मेरे हाथ में पेन लेके आ रहा है। करेक्ट। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरा मार्केट क्या है। अब क्या होता है, मार्केट आज के तारीख में इंडियन मार्केट इज सुपर डायनामिक। आपको ये दिखेगा कि एसएमईज, एमएसएमई, या मैं अगर उसको भी और डिफरेंट वे से बोलूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक लोअर मिडिल क्लास है, एक और एक अपर मिडिल क्लास है। ये जो तीन सेगमेंट्स हैं ये बहुत मेजर मार्केट्स हैं इंडियन मार्केट के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। सपोज मेरा प्रोडक्ट है और ये अपर मिडिल क्लास के लिए, अभी अपर मिडिल क्लास के लिए मार्केट है, बट इसके अंदर आइडेंटिफाई करते ही प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू बी इनोवेटिव। एग्जिस्टिंग चीज़ ही अगर आप डालोगे, बात मतलब आज एक कप है, एक एग्जिस्टिंग मार्केट में प्लेयर है जो कि एक सिमिलर रेंज का दे रहा है कप, बट उसके कप मेरे कप में फ़र्क क्या है? अगर मैं उसकी जैसा ही निकाल रहा हूँ, लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, नॉट ओनली फॉर कप बट फॉर एवरीथिंग, इवन अपॉस्ट्रीज हैं और लाइक व्हाटएवर थिंग्स। तो जब ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है, यू हैव टू कम विद वेराइटी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मारुति। ओके। सो मारुति की 5 लाख से लेके 15 लाख तक की रेंज में 15 गाड़ियाँ हैं। व्हाई इट इज सो? उनको कॉपी किया हुंडई ने, उनको कॉपी किया टाटा ने, एंड फ्यू अदर ब्रांड्स व्हिच आर कमिंग इन देयर। सो ये सारा क्यों है? क्योंकि कस्टमर्स के पास ऑप्शंस होने चाहिए। करेक्ट। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, सो कस्टमर के पास कहीं और जाने से बेटर है एक ही जगह। एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है कोक की। सो कोक ने एक वेंडिंग मशीन लगाई एक पब्लिक प्लेस में यूएस में, और वहाँ देखा कि वहाँ सेल ही नहीं आ रही थी। अच्छा। तो कोक ने क्या किया कि एक और वेंडिंग मशीन लगा दी पास में पेप्सी की, ओके। कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर्स की। उसने कॉम्पिटिटर्स की लगवाई। उससे हुआ क्या कि सेल्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गई। क्यों? When there is one player, people think खरीदूं कि नहीं खरीदूं, यहाँ पर नहीं खरीदूं। When there are 2 players, कौन सा खरीदूं? अच्छा। माइंडसेट चेंज हो जाता है, Mindset बिकॉज आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं। जब आज आपके सामने 2 पर्स की शॉप्स है सामने, तो आप ये देखो मैं कौन सी पर्स की दुकान में घुसूं। राइट। एक दुकान होगी तो आप ये सोचोगे कि किसके अंदर जाऊंगा। कनेक्ट कर पाए। सो राइट। आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर ही वेरिएशन लेके आने पड़ेंगे ताकि आपका कॉम्पिटिटर आपके मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पाए। मारुति इज डूइंग दैट। आज उसने सिमिलर ब्रांड को 2 अलग अलग प्रोडक्ट नेम्स आ रहा है, एक आ रहा है उसका मारुति अरीना और एक आ रहा है नेक्सा। सो वो 2 अलग अलग ब्रांड्स में दिखा रहा है, बट प्रोडक्ट रेंज इंटरनली सबको पता है, सब इक्विवेलेंट है, ठीक है। कुछ टेक्निकल स्पेक्स इंप्रूव्ड है नेक्सा के अंदर, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम। सिमिलरली आज आप एक
बिस्किट ब्रांड लाइक पार्ले जी, तो पार्ले जी का 2 रुपए का 5 रुपए का पार्ले जी से लेके आज 50 रुपए तक का पैकेट आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो 5-5 रुपए के फर्क में पूरी वैरायटी लेके आ गया। आपको सो जो आपके चाहिए पास जो चाहिए वो। सो दिस इज वेयर यू हैव टू क्रिएट योर ओन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ताकि दूसरा कॉम्पिटिटर आपकी स्पेस में आ नहीं सके। क्योंकि आपको ये डेफिनेशन समझनी जरूरी है, बिजनेस ओनर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर। एंड जब आपके पास एक अच्छा कस्टमर बेस होता है, दैट इज वेयर यू कैन अपसेल। सस्ता माल बिक गया, अब उसमें अच्छा माल डालो, ताकि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप भी अपसेल करके आपका बॉटम लाइन इंक्रीज कर दो। LIC बोलता है जीवन बीमा फलाना, एक बोलता है कि some product on to the girl child, some product on boys, some product on in terms of adult होते ही उनके जो एजुकेशन के लिए है, Right, तो वो right. सारे अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएट कर Product दिए, उसको नाम दे दिया। जैसे ही आप एक सर्विस को एक बैच दे देते हो, वो एक प्रोडक्ट की तरह आपके चार्ट में आ जाता है। सर्विस इज नेवर बीन रिकग्नाइज्ड। Right. A brand name which a name which when it is attached to a service, it becomes a product. तो आप किसी भी कंपनी के पास जाओगे, उसको बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी स्पेसिफिकली कि मुझे अपने डॉटर के लिए करना है, तो एक्स कंपनी बोलेगी हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है जो कि आपकी डॉटर के लिए है, वाई वाला वही प्रोडक्ट देगी पर उसका नाम दूसरा होगा, जेड वाला कोई और प्रोडक्ट देगी, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं बट उसका नाम अलग है। तो क्या बोलेंगे कि साहब टाटा इतने में दे रहा है ये वाला प्रोडक्ट, बजाज इतने में दे रहा है, आदित्य बिरला इतने में दे रहा है, फलाना इतने में दे रहा है। तो दैट इज वेयर यू हैव टू ब्रांड योर प्रोडक्ट। So what mistake people actually do is don't product your brand. Don't product your brand. Okay. Brand your product. Okay. गलती क्या करते हैं लोग, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं फिर सोचते हैं हम एक ब्रांड बनाएंगे। पहले ब्रांड बना लो, प्रोडक्ट अपना आप निकल। सही बोल रहे हो आप। तो आपको क्या लगता है ये मार्केटिंग, आजकल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज भी चेंज हो गई है ड्यूरिंग द पीरियड, अब डिजिटल में ज़्यादा फोकस हो गए हैं, तो how one can do digitally marketing also? So I think post COVID कोई भी बिजनेस हो, whether it is a small scale or a large scale, सबको अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर, जैसा बिजनेस पार्टनर होता है हमारा कोई, वैसे आपको टेक्नोलॉजी को पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल बिग टाइम। क्योंकि जिस तरीके के आगे टूल्स आ रहे हैं या मार्केटिंग कैंपेन्स हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग कैंपेन्स आर नो मोर कि कोई शूट हो रहा है, उस पर कोई सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहा है, बट वो सेलिब्रिटी भी अब एक जर्नी दिखा रहा है। सो एवरीवन इज लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस इन अ मार्केटिंग कैंपेन एज वेल। इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फेविकॉल। सो आज फेविकॉल के जो एडवर्टीजमेंट्स है, अंबुजा सीमेंट के जो एडवर्टीजमेंट्स है, वो एक एक्सपीरियंस होता है, उसमें ह्यूमर होता है, उसमें कनेक्टिविटी आती है। So all such kind of marketing campaigns, all such kind of things can be easily created out of technology. There are lot of things. ChatGPT is again one of those which has created an entire, I would not say but the people might think it is ChatGPT is creating a mess, but it is creating huge opportunities. Yeah, because क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना मेजर आ गया है उसके अंदर। मैंने स्टार्टेड पॉडकास्ट, मैं ChatGPT यूज करने लगी और करने लगी। वन ऑफ द डायरी आई वाज ChatGPT जिंदाबाद, आई रोट लाइक जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट सो मच क्लैरिटी इट्स कमिंग। बस आपको प्रॉम्प्ट देना है एंड इट्स। बट मैं बताऊं आपको, यहाँ पर भी लोग बहुत मेजर मिस कर रहे हैं। सो रिसेंटली वन ऑफ द BNI मीटिंग्स में हमारा एक ओपन नेटवर्किंग क्वेश्चन था, इज टेक्नोलॉजी अ थ्रेट और इट इज अ ब्लेसिंग? सो मेरे को वहाँ पूछा तो मैंने कहा टेक्नोलॉजी इज योर गर्लफ्रेंड, इट्स काइंड ऑफ अ गर्लफ्रेंड, इफ यू डोंट हैंडल इट प्रॉपर्ली इट इज गोइंग टू डिच यू। ओके। सो आपको टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत इजीली अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। आपको लगा कि मुझे ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने महीने की सब्सक्रिप्शन पे ले लिया। मेरे को ये फलानी चीज़ चाहिए, ChatGPT का एडवांस वर्जन चाहिए, 900 रुपये की महीने की कॉस्ट में, 2000 रुपये की महीने की कॉस्ट में मैंने उसको ले लिया। लेना बहुत आसान है, बट उसको लर्न करके यूज़ करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो एक बहुत मेजर फंड वेस्टेज उस पर भी हो रहा है, भले वो OTT प्लेटफॉर्म्स हो, सॉफ्टवेयर्स हो, या कोई भी बिजनेस यूसेज की कोई टूल्स हो, ये सब एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर आ गया।
बहुत अट्रैक्टिव प्राइस। हाँ, nominal. 149 रुपीज से लेकर के 1499 रुपीज में विल गेट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स Right. एंड पीपल आर सब्सक्राइबिंग इट रैंडमली एंड दे एंडिंग अप, मतलब एक इसकी रिसर्च आई थी कि साल भर के अंदर जो लोग बाग खरीद रहे हैं उसमें यू कैन नॉट बिलीव ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पेमेंट लोगों का कट हो रहा है एंड दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज सर्विसेज। सो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा दैट यू हैव अ गर्लफ्रेंड जो कि सिर्फ डिमांडिंग है, जो आपसे सिर्फ बोल रही है आज मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ, तो वही चीज़ इनके साथ है टेक्नोलॉजी के साथ, अगर आप उनको ढंग से यूज़ नहीं करते हो, नहीं तो वो आपको डिच ही करेगी। सही बात है। So you have to take care of the things. That's how you will be able to make the most out of it. And I think वही अपडेशन, अपने आप को अपडेट करते रहना विद द टेक्नोलॉजी, विद द एआई, क्योंकि अब मार्केट तो बहुत जस्ट बिकॉज ऑफ एआई बहुत रैपिडली चेंज होने वाला है। अभी मैं बताऊँ आपको, ये अभी बहुत रॉ स्टेज पर, अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग, ओके, बहुत रॉ है। अभी तो जो आगे आने वाला है, you cannot even imagine. So one have to be updated. Yes, one has to be updated. One has to be a part of a network where he can be updated every day. Right. Because हम ये सोचते हैं कि हम तो हमको बहुत कुछ आता है, हम हाँ. बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है। मनी इज नोवेयर अ क्राइटेरिया, नोवेयर। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जिस कोविड आया, जिसके पास रुपया था उसको हॉस्पिटल में बिस्तर नहीं मिला, हाँ, और जिसका नेटवर्क था उसको बिस्तर मिला है। ये बहुत पते की बात बोले तो आपने। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, Yes. योर मनी इज नोवेयर योर नेटवर्क। तो आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क है, एंड दैट इज वेयर communities are there which can help you to grow together. अभी आप एक नई कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? So corporate connections is super HNI network where we are building this community in Jodhpur, where we are inviting business owners from Bikaner, Pali, Malhotra and Jodhpur. Together we are creating a chapter over there, and this is again a global community. Here we have a capping in terms of the room size is very, very small. Room size is between 15 to 30 people max, and the capping in terms of that who all are invited in this, majority, like I would say, the business owners who in terms of the manufacturing who has a turnover of 100 crores. In terms of service sector, it's 50 crores, and in terms of professionals it is 10 crores. But it is not only depend onto this particular turnover criteria, it is also on the what kind of business owner he or she is, what kind of rapport they are carrying in their markets. So we are creating this particular community of the who's and who of the town. We are basically, if I tell you the one line, so we are creating a boardroom of top business leaders of the town. So we are coming up with one of the first communities for kids. Kids. Yes, so Okay. we are at this kids community is where we are going to nurture the future entrepreneurs. So it is for 11 years to 16 years of kids, and the name of this community is Business University. Oh. It's a 15 weeks program where we are going to where a kid is going to actually experience a journey of coming as an assistant executive, and he's passing out as a CEO. So Right now it's running. no, we are starting it very soon in the like end of this month, and And this will be online program or no, offline? offline Offline. program. It will be on Sundays, and here we are going to touch base lot of areas, starting from spiritual to self love to entrepreneurship skills to factory visits to financial planning to investments to how to create a project. What is the value of relationship? What is the value of funds? What is the value of तो बेसिकली जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता है वो आप सब सिखाने वाले हो? I'll be honest to you, this is out of my journey. Yes. जब मैंने अपनी जर्नी में जो चीज़ मिस करी, Right. वो मैं यहाँ पर कुछ क्रॉस करना चाहता हूँ. वही मैं बोलना चाहती, काश मेरे टाइम में भी होता ये सब. I was also missing all those things जो आपने अभी So, अभी जो मैंने बताया. अपने लाइफ में चाइल्डहुड से यहाँ तक जो मैंने आपको जर्नी बताई है, उसकी का you can say this is a gratitude to all those people who have supported me, and this is a program what we have created, and there are
it is not just that I have created this. So we have a team behind it. We have got two school I would say principals behind it. We have got few of the teachers who have actually created the entire curriculum. Okay. So we have a very interactive curriculum, and which will be of zero paper. Full it is like entirely activity based, Practical based. practical based. Lot of fun is there, lot of stories are there, lot of engagement activities are there, and initially we are starting only for the BNI member kids. Okay. So it will be in Bikaner, Jodhpur. It is the first batch is going to come in Jodhpur, Okay. and then definitely Afterward. we're going to open here in Bikaner as well. It's so good to hear that. I'm even excited when you are going to open here. So definitely this will help on lots of Yes. children's. Yes. So for the people who don't know BNI, what is actually BNI is all about? Can you explain me in sweet and simple way? देखिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक सर्विस सेक्टर में हैं, आपके बिजनेस में एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स होंगे. इट कैन बी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिस्पैच डिपार्टमेंट. सो BNI इज योर मार्केटिंग डिपार्टमेंट. सो आप BNI में आते हो, सो BNI इज योर मार्केटिंग डिपार्टमेंट. And BNI is nowhere in kind of an MLM, which few of the people might misinterpret. But ये एक business community है. जैसे आज आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो आप 4 आदमी से चेक करते हो कि मेरे को चीज़ खरीदनी है, ये सही है या नहीं है. फिर लोग बोलते हैं तुम यहाँ से मत खरीदो, यहाँ से खरीदो. उन्होंने क्या किया, आपको एक रेफरल दिया. इस रेफरल की वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इज BNI, अच्छा. वर्ल्ड की. और आप ये देखिए कि आज मैं वापस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक बिजनेस ओनर के बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉय को रखने की कॉस्ट क्या है? 15 से 20 हज़ार रुपये. कोई मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2 या 10 एम्प्लॉय रख लेगा. और उसके बाद में भी उसको कोई भरोसा नहीं कि कितना बिजनेस आने वाला साल के एंड में. Correct. इन BNI we have minimum 35 to 51 75 plus members in each chapter. चैप्टर का मतलब ग्रुप होता है हमारा. हम ग्रुप को चैप्टर बोलते हैं. अच्छा. और एक बिजनेस कैटेगरी का एक ही मेंबर अलाउड है. तो आप सोचो, बीकानेर के सारे टॉप बिजनेस ओनर्स या जोधपुर के सारे टॉप बिजनेस ओनर्स एक रूम में एक कैटेगरी के आ रहे हैं, जहाँ कोई कंपटीशन नहीं है. उस रूम में आप खुल के धंधा कर सकते हो. अब वहाँ धंधे करने की या बिजनेस करने का डेफिनेशन अलग होती है, क्योंकि यहाँ जितने बिजनेस ओनर्स हैं, ये एक दूसरे की सेल्स टीम है. दे आर नॉट देयर एम्प्लॉयज और दे आर नॉट देयर कस्टमर्स, दे आर देयर सेल्स टीम. And the best part over here is we don't solicit, we strictly don't allow any kind of commissions. मैं आपको बोलूँ चांदी, मैं आपको एक रेफरल देता हूँ, मुझे कितना मिलेगा? Nothing is allowed. Strictly not, it's not allowed. So एक बिजनेस ओनर जब आपके लिए आगे लोगों को रिकमेंडेशन देगा, रेफरल लेके आएगा, तो आप सोचो एक एम्प्लॉय जो चीज़ को 10 दिन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, वो यहाँ 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाती है. तो एक फ़र्क होता है लीड. What you get from Just Dial, India Mart, वो लीड होती है. उसका कन्वर्जन रेशियो इज जस्ट 1%. रेफरल इज अ कन्वर्टेड सेल्स. मैंने आपको बोला चांदनी आप इनसे बात कर लो, ये आप he is looking for this thing, why don't you talk to him and he will get it done for you. So that's a converted sale. मैंने ऑलरेडी उसको कन्विंस करके रखा है आपके लिए. You just need to go and quote him and you have to just convert him. So BNI ये रेफरल्स की वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, where we are. हमारी जो टैगलाइन है, BNI is changing the way world does business. Okay. So we are actually changing, and the beauty of this organization is it doesn't affect your business hours. It doesn't affect your business with the schedules. Right. In the BN morning. it's yes, so generally- BNI की वर्ल्ड वाइड अच्छा. पूरे वर्ल्ड में 80+ कंट्रीज के अंदर 7:30 से 9:30 बजे की मीटिंग्स होती है. Okay. जो हमारे स्क्रिप्ट होती है, जो हमारी लीडरशिप टीम रीड आउट करती है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड कॉमन है. लैंग्वेजेस चेंज है, बट अक्रॉस द वर्ल्ड कॉमन है. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज आप बीकानेर के पार्ट हो. So it's not that you have taken a membership of Only BNI Bikaner. Bikaner. You are a part of BNI Global. BNI is for classes, not for masses. Why we say such thing? We are not creating any kind of discrimination. But जैसे रेफरल एक रेफरल चेक से आता है, एग्जैक्टली मेंबर्स भी हम लोग रेफरल से लेते हैं. References. वॉक-इन्स आर नॉट एट ऑल अलाउड. कि कोई आके बोलता है कि सर
मेंबरशिप चाहिए मुझे, ये लीजिए फीस, वी विल नॉट अलाउ. Okay. It is only through a referral check because this is a room of entrepreneurs. Right. This room of entrepreneurs where we cannot afford to have a person who is going to create any kind of mess. So we are very very vigilant on this, and that is why all the new members are coming via existing members only. So during the journey of the success, whom do you want to address as a key person of your life? So I would like to thank, and मतलब मैं शायद थैंक की वर्ड भी बहुत छोटा होगा. I would like to thank my wife Vidhi because she has been the strongest support behind me, because मेरे wife और kids, they are residing in Jaipur, Okay. and I am running this business community in Western Rajasthan. So Ah. for me the entire time I'm Traveling. going to travel, and she is managing the entire home, kids, everything. So she is one of my greatest inspiration. She is one of my greatest support, energy, or you can say to the person to whom I actually look up to. And एक चीज़ है ज़रूर जो कि मैं अपने वाइफ और मेरे सन से बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करता हूँ. So it's like every day morning, because she is an educator. Okay. So she has to leave by 7:30. So Okay. every morning 6 o'clock we have a half an hour to 45 minutes talk, Oh. where we discuss about what all things I have created, or what all things I have been going through, and what all things she has been going through, and what are the solutions to each other. Secondly, I talk all my business, I will not say problems, but all those areas where I am looking for suggestions with my son. He is just 12 years old, and I get a great input from him, because kids are these times I would say kids are inborn with the technology part, inborn with the ideas, inborn with the clarity of thoughts. So I get a lot of input from them. And lastly, definitely my family and my parents, because they have been a great support. So how do you balance your personal and professional life? Like all the time you are roaming around. So मुझे understanding? या so मुझे कई लोग बोलते हैं आप कहाँ पर मिलते हो, हाँ कि मतलब. अब जोधपुर हो, बीकानेर हो, गंगानगर हो, पाली हो, जयपुर हो. So मेरे को बोलते हैं मेरा जो परमानेंट एड्रेस है, दैट इज माय कार. Okay. और वर्क लाइफ बैलेंस इज लाइक, आई थिंक ये जो टर्म है ना, ये कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा. सबके अपने अपने Criteria डेफिनेशंस है. होंगे, इसके आंसर्स होंगे. बट यस, वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर the only thing what I have realized over the period of time, that's my verdict, that if you want to maintain any relation, whether it is professional or your personal, the only thing which is important is communication. Yeah. So I make sure that anything and everything is being communicated to all the areas, whether it is my personal or it is my professional. Right. Because जहाँ communication नहीं आएगा वहीं misunderstandings create होगी, वहीं Correct. जाकर के multiple और चीजें create होती. So communication is there. Okay. To which I make sure that it is it is done in well timed. Time. It is like timely communication. Timely communication. Communication से सब सॉल्व हो जाते हैं. I feel any जो भी आपके बीच में है या कोई भी fights है, हर चीज का solution communication ही है. हाँ, Proper हाँ. communication I think- and listening. Definitely. सिर्फ अपना बोलना नहीं and समझना भी. Absolutely. And जो आपने एक वर्ड अभी यूज किया कि जैसे फाइट्स होती है, तो फाइट वहीं होती है जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता है. हाँ. तो इफ यू आर डूइंग रेगुलर कम्युनिकेशन with anyone and everyone, हाँ, तो अब वो आपको एक understanding clear हो जाएगी. right, understanding build होता है. So let's get started with the rapid fire round. sure. और वैसे ये क्वेश्चन कैसे आ गया आपके पास? So आपने कहा रैपिड फायर राउंड, so suppose if I'm not ready with it, I like to pass it on to you. Okay. चलो. The first question should be, what's the best learning during the journey? सपना तब खत्म होता है जब देखना बंद कर देते हो आप. सो यू शुड कीप ऑन ड्रीमिंग. सपने लेते रहिए और सपनों को विजुअलाइज करिए, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ exciting things in your dreams which you can imagine. This is the power what you have rather than anyone else has. So सपने बंद मत करिए और उसको विजुअलाइज करिए, बिकॉज वही क्रिएट होता है एक्चुअल में आपकी लाइफ में. So keep on visualizing. Okay.
The next is morning meetings or evening meetings. Which one you prefer? मॉर्निंग मीटिंग्स डेफिनेटली बिकॉज जब आप सुबह उठते हो आपकी एनर्जी हाई होती है. इट डजंट इफेक्ट योर बिजनेस आवर्स एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन योर कंपटीटर इज स्लीपिंग यू आर डूइंग बिजनेस. Nice thought. Okay, and your favorite BNI event of the year? So generally we have 52 meetings in a year. Each Okay. chapter is having. So we say it is not a meeting; it is an opportunity day. You Okay. get 52 opportunities, but we have four events. One is our first starting from the January. We have our sports league, which is a family event where each member is allowed to participate with his entire family, including his spouse, kids, and his parents. Okay. And we have almost 11 sports, and it is a 3 days event where we are like from early morning 6 o'clock to evening night you can say 12 o'clock we all are there together. So that is one of our flagship events, and this year we are going to experience the fourth version of it. And second is followed by our business summit expo, which is one of the largest business expos which is being conducted over there in Jodhpur, and where people from across the industries come and participate. It is an exhibition come let's say keynote speaker sessions are there. Okay. Third, we have our business Than, which is one of our flagship event, which is very popular across BNI India fraternity, where almost 300 to 400 BNI members come across all the way from India to Jodhpur for a 3 days event, Okay. which was recently conducted in Jodhpur on the 2nd, 3rd and 4th of August. And then the last is our Mahotsav, which is our BNI Jodhpur Mahotsav, as well as it is called as the Members Day, where we recognize and we felicitate all the members who have created some difference for the entire business community, where they are invited along with their families. So for me, all the events are favorite for me. But I asked only one. So if you want to ask, definitely it is going to be business Than. Okay. So one business tool which you can't live without. WhatsApp. Okay. Even we can't live without that. One book that have changed your life. So one of the major shift what I have experienced in my life is from the book The Magic, Okay. and which is 28 days book. Because why I'm saying 28 days book? Because it has got 28 chapters, which has to be finished one chapter each day, and it is totally on how you can surrender yourself with the power of gratitude. Okay. Great. So one of the most misconception about networking. So networking is all about farming. It's not about hunting. So majority of business owners what they miss on is कि अगर उनको एक बहुत अच्छा एक बिजनेस नेटवर्क का एक्सेस मिल गया, वो जाकर के बेचना शुरू हो जाते हैं. Right. उनको बेचना नहीं चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए. So you should never be a hunter, you should be a farmer. Right. Okay. One piece of advice someone struggling with confidence. So if anyone is struggling with confidence, I think the best person to answer you is yourself. Stand in front of a mirror and talk to yourself, because what is happening is that particular person is getting operated by the other. Okay. So लोग गलती ये करते हैं कि लोग दूसरों की चीज़ों को सुन करके अपना परसेप्शन बदल देते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ या मैं वैसा हूँ. You should realize what power you have. You should connect with us. Yes, and to connect with yourself, you need to connect through this mirror exercise, which I have discussed in the earlier part, Okay. and that is going to transform for sure. Okay. So one word that describes your journey. One word that describes my journey is gratitude, because that is the thing which has changed my life. Okay. So almost we have known about you in and outs and everything, and it was a great experience with Same you. here. एंड काफ़ी कुछ सीखने मिला है, जो काफ़ी कुछ पता भी नहीं था, शायद वो सब भी आज काफ़ी, और मुझे भी और मेरे ऑडियंस को भी, आई फील दे कैन टेक सो मेनी पॉइंट्स आउट ऑफ इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. Thank you for inviting me. Thank you so Any much. one message, last but not the least, any one message to the audience? So your energy is reflection of your intentions. Okay. So आपके जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, आपके उसी से इंटेंशंस क्रिएट होते हैं, उसी इंटेंशन से एक्शंस क्रिएट होते हैं,
और वही एक्शंस आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करते हैं. और ये सब अगर एक ही अलाइनमेंट में हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है. आई फील सब कुछ अलाइनमेंट में होना चाहिए. I think yes, alignment मेरे ख्याल से बेसिक्स से चलो, बहुत स्लो चलो. Things will happen and I think ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए. Just flow with the flow. Okay, what a lovely advice, and once again thank you for coming. Thank you for inviting me, and it was a pleasure, and thanks to the entire team. Yeah. Thank you. Thank you.